ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊ ਕਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ
ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ बाबा तरलोचन जी ने पावन बाणी विच लिखिया, कहंदे अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन वल वल अवतरै। ये तो एक गुरु की पावन बाणी विच भगत तरलोचन जी ने हिंट दिता। अंत काल कदों है? साडा हर वक्त अंत काल ही है, क्योंकि सानू किसी नू भी पक्का पता नहीं है भी असीं किन्नी उम्र भोगनी आ, किन्ने सानू स्वास मिले ने, किन्ना टाइम असीं इस धरती ते गुजर सकते हाँ। क्या जाना कि वह मरेंगे, कैसा मरना होए, कोई पता नहीं कदों कित्थे किवें मरना है, किवें शरीर छड्डना है। इन्हां तीन गल्लां दा वो वाहिगुरू परमात्मा ने मनुख तो ओला रखिया, छुपा के रखियां ने। क्या जाना की पता कदों जाना, किव मरेंगे, साडी मौत दा कारण की बनू, बुढ़ेपा, जवानी, अध खड़ जा बचपन, जां माता दे गर्भ विच खर जाना, खत्म हो जाना। वो अकाल पुरख नूं पता भी किवें कदों ते कित्थे असीं खत्म होना है। वो तो सरीरक तल ते एक बारी जन्मे हाँ ते एक बारी मौत होनी है। ते भगत तरलोचन जी कहंदे बंदा सुरत करके कई बारी जन्मदा ते कई बारी खत्म हो जाता। उत्थे असी 24 घंटे अंत काल विच ही हाँ, अंत समा ही है साडा, कोई पक्का पता नहीं भी इस धरती ते किन्ना टाइम असी हाँ। हुण इत्थे भगत तरलोचन जी कहंदे जो भी जीव अपनी सुरत नूं माया दे विच खबो लैंदा है, एक तो हक हलाल दी कमाई करनी है ना, दब के बाह रज के खा दा कॉन्सैप्ट है। भाव असीं अपनी जिंदगी विच हक हलाल दी सही मेहनत करनी है ते अपने परिवार दे विच रहिंदियां सौखा जीवन बतीत करना है। एक होरां दी हथ तो रोटी खो के अपने मूँह विच अपने परिवार विच कताउणी। ते बाबे नानक दा सिद्धांत आ, उन्हें होरां दे हथ तो रोटी चक्की नहीं, उन्हें होरां दे हाथ ते रोटी रखी आ। केवल ते केवल ये सिख संधात सिख इतिहास गुरबाणी नाल संबंधित विचारां ने कि गुरु साहिबान यही मत सानू दिंदे ने ते इसे मत अनुसार उन्होंने जीवन जिउया। ते हुण इत्थे भगत तरलोचन जी कहंदे जे साडी भावना ये बन गई तां असीं उस टाइम ते सप दी जूनी विच प्रवेश हो जावांगे, होवांगे बंदे, पर साडा सुभाअ जिहड़ा है ये सप बन जूगा। फिर ना सानू साडी मां नज़र आउणी आ, ना दादा, ना दादी, ना भैण, ना भरा, फिर सानू कोई नज़र नहीं आवेगा। क्यों? क्योंकि सप दा सुभाअ गा ओ जिहड़ा उहनूं दुध पिलावे ना, जिहड़ा उहनूं पाले, अक्सर उस दे भी वो डंग मार जांदा। ते जिहड़े बंदे दा जीवन लालची हो जावे ते लालच लोभ दे विच खुबिया होया बंदा अपणियां दे भी डंग मार जांदा। इनू की कहा जाता? हाँ, असी बंदे ते पर सुभाअ साडा सप वाला बन गया। अंत काल जो इस्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, वेशवा जोन बल वल अवतरै। हुण
सुरत करके अवस्था बदलते रहंदे ने। फिर जिक्र की कीता पातशाह जी कहंदे जेड़ा अंत काल इस्त्री मंदर लक्ष्मी अजिहा पक्ष सिमरदा है। फिर सुखमनी साहिब दे विच आपां पढ़दे हैं ना, पातशाह जी कहंदे करतूत पशु की, हाँ तो बंदे आपां ते जिक्र की कीता करतूत पशु की। साडी जिहड़ी करतूत आ, जिहड़े साडे लक्षण आ ना, वो पशुआं वाले हो गए। शरीर करके असीं बंदी आ, कोई शक नहीं इहदे विच, ते करतूत लक्षण वो पशुआं वाले। हुण पशु समाज देखो, इत्थे पशुआं नूं समझाउण दे लई बंदे दा जिक्र नहीं कीता, ते ना ही आप अपने घरां विच मझां गावां रखते हैं ना, दुधारू पशु पंछी रखते हैं, ना ही कदे आपां उन्हां पशुआं नूं कहा भी बंदे तो सिक्ख्या लै लो तुसीं। उन्हां नूं जिहो जिहा सुभाव वाहिगुरू ने दिता ना, वो उहो जिहे सुभाव विच अपनी उम्र बतीत कर जांदे ने। उन्हां दे अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं आउंदा भी वो पशु वो पंछी अपना आपा बदलण दे लई बंदे कोले जाण भी सानूं आपदे वर्गा बना लै। कदे सूर नूं, चलो वो वाहिगुरू दी किरपा भी वो अपनी गल नहीं समझदा, आपां उहदी गल नहीं समझदेगे। कदे सूर नूं कहीए भी तू सारा दिन 24 घंटे गंद विच मूँह मारदा ना, चल तैनूं किसे होर जूनी विच पा दिन्ने आंगे। वो कहंदा नहीं, मैं अपनी जूनी विच संतुष्ट हां, मैनूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल शांत हाँ। गंदगी दे कीड़े वो कहंदे असीं अपनी मौज विच हाँ। साडा रोजाना दा जीवन ऐसा ही परमात्मा ने बख्शिया। पर एक बंदा जिहड़ा की आ, जिहड़ा पशुआं नालों गए गुजरे काम करदा, ते गुरु नूं शब्द गुरु नूं समझाउणा की पै गया, पशुआं दीआं उदाहरणां लेके बंदे नूं समझाउणा पै गया। हुण पशु दी इत्थे उदाहरण क्यों दित्ती है भी तेरा जीवन तेरी करतूत पशुआं वर्गी आ, क्योंकि पशु जगत विच रिश्तेदारी नां दी कोई चीज़ नहीं है। ਜਦੋਂ रिश्तेदारी नां दी कोई चीज़ नहीं है, तो जिथे रिश्तेदारी टुट जाए तो उत्थे आपां नूं पता भी किहो जिहा माहौल बन जाता, किहो जिहा सिस्टम हुंदा, आपां सारा जाणदे आ, समझते हैं ना इस गल नूं। इस करके गुरु साहब जी ने सानू समझा दिता, कहंदे बंदिया तू है बंदा, पर करतूत आ जिहड़ी वो बंदियां वाली नहीं है। करतूत तेरी लक्षण तेरे वो पशुआं वाले नेगे। पशु ना बन, तू बंदागा बंदा ही बन। ते गुरबाणी विच किते भी इस तरह का जिक्र नहीं आउंदा भी गुरु साहब ने सानू कोई स्पैशल तौर ते कहा होवे भी ब्रह्म ज्ञानी बन जो सारे सारे तुसी संत महापुरख बन जो। हाँ, जो हन वो सत्कारयोग ने, जे है भी है ना वो सत्कारयोग ने। कोट मध्य को बिरला सेवक, रब दे प्यारे, रब दे संत जन, गुरमुख जन, ब्रह्म ज्ञानी वो सत्कारयोग ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी च कमाई की है। पर सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ उपदेश नहीं है भी तुसीं सारे इस लैन च आ जाओ। फिर कहा कि है गुरदेव पातशाह ने, कहंदे बंदा ना ते बंदा ही बन के रह, बस इन्ना ही काम कर ला, होर नहीं जरूरत, इन्ना ही काफ़ी आ। चलो कहण तो मुराद भी सतगुरु पातशाह ने सानू समझाउणा कीता भी ऐ बंदे तू अपनी जिंदगी नू गुरु नाल जोड़ के स्वच्छ बनाउण दी कोशिश कर। भांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी, भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होए सी। जिहड़ा साडा शरीर रूपी बर्तन आ ना, ये धोता हच्छा नहीं हुंदागा, धोता दुनियावी तल ते साफ नहीं हुंदागा। साडा मन आ जिहड़ा इनू जिहड़े मर्जी तरीके अपनाउंदे रहिए, केवल गुरु की पावन बाणी नाम जल तो बिना ये साफ नहीं होवेगा। भरिए मत पापां कै संग ओ धोपै नावै कै रंग। फिर इस जन्म जन्म की इस मन नूं जिहड़ी मैल लगी हुई है ना, फिर पातशाह जी कहंदे ये भाई तू शरीरक तल ते बंदा हाँ ते बंदियां वाले काम कर, फिर तां मैल लथ सकदी आ। ते नहीं भागां वाले इन्ना जरूर ध्यान रखी भी तेरे अंदर दी जिहड़ी मैल आ ना, ये नाम तो बिना गुरु दी सेवा सिमर तो बिना कदे लथेगी नहीं। ये कदे भी इदा नहीं है भी तू किसी होर तरीके नाल साफ कर लवेंगा, जिन्ने मर्जी तरीके अपना लवी। कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जगाती लुटै। फिर गुरदेव पातशाह ने की कहा, कर्म दे ना धर्म जिन्ना मर्जी कमाउण दी कोशिश कर, अपने कर्मां दे नां ते जिन्ना मर्जी धर्म दा आडंबर कर लै, पर नहीं मन दी मैल नहीं उतरेगी। ये तां नाम तो बिना, पातशाह दे ज्ञान तो बिना कदे खत्म नहीं होवेगी, लथेगी नहीं।
इस करके गुरु साहब जी ने कहागा, कहते भाई जे तू इस धरती ते अपनी शरीरक तल ते जिंदगी तैनू कुछ टाइम मिली आ ना, इनू सोहनी बना, चंगी बना, इनू वधिया बना, किते ये ना होवे ये तेरी सारी दी सारी जिंदगी मैलेपन दे विच ही बतीत हो जावे, भाव तेरी जिंदगी कदे बेअर्थ चली जावे। ये दुनिया में रहिंदे आ ना, बिच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह वैसन पाई है, कहो नानक बाहां लुढ़ाई है। भाव दुनिया में रहिंदे होया गुजरदे होया बस चंगे कर्म करदा होया अपनी जिंदगी सफल करन दा यतन कर, ठीक है ना। इस करके गुरु साहब जी कहंदे ने, कहंदे ऐ बंदे तू इस दुनिया दे विच आया है, ये दुनिया एक नदी है, एक दरिया है, ये दरिया दे कंढे ते तू अपनी जिंदगी बतीत कर रहांगा, इस दरिया दे कंढे ते जिंदगी गुजार रहा, पर जिहड़ी तेरी शरीरक तल ते जिंदगी गुजर रही है ओदा नक्शा, ओदी तस्वीर, ओदी फोटो आ ना जिहड़ी, वो मैं किसी होर ढंग नाल वेखी है। किहड़े ढंग नाल वेखी आ? वो फरीद साहब जी दा आपां श्लोक वचन पढ़िया ना, फरीदा दरी आवे कन्नै बगला। बड़े बारी तुसी कीर्तन दे रूप विच, विचार दे रूप विच शब्द नूं सुनिया होवेगा, दरी आवे कन्नै बगला। अगे लिखिया की है, कहंदे बैठा केल करी, कहंदे हुण दरिया वग रहा, पानी वग रहा गा, उहदे कंढे ते ना एक बगला बैठा। ये फरीद साहब ने अपनी अख दे नाल सीन वेखिया। पहली गल तां जिन्ने भगत भट्ट गुरु के सिख गुरु साहबान गुरु की पावन बाणी दे रचनहारे आ ना, उन्हां दी कमाल ये आ भी उन्होंने जो अपनी अखां नाल वेखिया उन्होंने पूरी तरह घोख के फिर किते जाके शब्द उच्चारण किया, उन्होंने पहला पूरी गौर नाल वेखिया ते किन्नी मेहनत किन्नी कमाई कीती है गुरबाणी लिखण ते। हुण फरीद साहब नूं देखो, ये तां है नहीं भी किसी स्कूल विच किसी मदरसे विच ये पढ़ाया गया होगा भी तू जाके ना बगला वेख के आ, पर अपनी मौज दे विच ही उन्होंने अपने घर दे कम धंधे करदे होया बगले नूं नदी दे कंढे ते बैठिया वेखिया। अच्छा, केवल बगला नदी दे कंढे ते बैठा, नदी वग रही आ, बगला अपने ओ अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म विच उत्थे बैठा कुछ कर रहा। हुण बगला की हैगा? खुराक ओदी ये तां है नहीं भी घाह फूस खाऊगा, हो ये तां है नहीं ना भी वो सब्जी खाऊगा, ये तां है नहीं भी वो स्पैशल चूरी खाऊगा, स्पैशल कोई रोटी बना के खवाउणी आ उहनूं। ओदी खुराक की आ? वो तो गुरबाणी विच दर्ज आ ना, उहनूं गुनाह कोई नहीं गा। बग डड्डां भालण जावे, बगले दी खुराक डड्डां मच्छियां चुगणीਆਂ, पानी विचों जीवां नूं खाना, ओदी खुराक आ, उहनूं कोई गुनाह नहीं कोई पाप नहीं है। पर जिहड़ी फोटो फरीद साहब ने वेखी आ ना, तस्वीर वेखी आ, ओहदे तो अगे जाके गल करके सानूं समझायागा। सानूं की समझायागा? सानूं ये समझायागा प्यार वालिया, वेखिया मैं बगला सी पर वो बगले की थां ते ना मेरी सुरत च बंदा आ गया। देखिया बगला सी मैं, ये कोई शक नहीं। गल भी बगले दी लिखी है, फरीदा दरी आवे कन्नै बगला बैठा केल करे। देखिया बगला ही है पर बगले की थां ते मैनूं बंदा नजर आउंदा सी। बगला नहीं, ओहदे राही बंदा दींदा सीगा। जिवें आपां कई बार कहने तू तो बिल्कुल फलाने वर्गा, जां कोई मां कहे तो मेरे पुत्त वर्गा है, तो मेरी धी वर्गी हैगी, इदां दी आपां गल करदे ना, मैनूं तो जमा सेम मेरे पुत्त मेरे धी वर्गा भुलेखा पैंदा। हुण फरीद साहब जी कहंदे सी बगला पर मैनूं दींदा उहदे विचों दी बंदा सी, भी ये लक्षण ना बगले वाले बंदे च नेगे, सेम नेगे बिल्कुल। हुण बगला बैठा गा ते फरीद साहब ने की कहा? बैठा केल करे। केल तो भाव कलोला, कलोलां तो भाव मस्ती दे विच रहना। ते मस्ती की आ? डड चुकदा, मच्छी चुकदा, उपर नूं भगाउंदा, थल्ले चुंझ कर लैंदा गा। पर वेंदियां वेंदियां होया की आ? फरीद साहब जी कहंदे ना, जेड़ा किन्ने जीवां नूं वेंदियां वेंदियां कलोलां कर कर खा रहा गा, कहंदा इन्ने नूं मौत रूपी बाज ने आके बगले नूं भी
झपट मारी। मौत रूपी आवाज ने आके बगले नूं झपट मारी। हुण ओ आवाज किहड़ा गा? साडे लई मौत है ते बगले लई एक बड़ा जानवर है, बड़ा जीव है। उहने आके बगले नूं दबोच लिया। जिहड़ा बगला मौत नूं भुल के जीवां दे नाल कलोलां करदा सी, वेंदियां वेंदियां बाज चुक के ले गया ते ओ बगले नूं खत्म कर दिता। ये नक्शा बगले दा, पर समझाया किनू? सानू। हुण दरिया किहड़ा गा? ओ दरिया दुनिया। ये नदी क्यों आ? पंजवें पातशाह ने गुरु की पावन बाणी विच दर्ज कीता ना, वहती जात कदे दृष्ट ना धारत। बहती जात, बहती भाव बह रही है। की बह रही है? जा रही है। ये दुनिया रूपी दरिया, नदी, पानी ये बग रहा भाई, ये लंघ रहा। अज हो रहे थां ते, कल नूं असीं चले जाना, ये थां बच्चों ने ले लेनी है। फिर बच्चों की वारी आ जानी, वो जवान बुढ़े होणगे, फिर उन्हां थां ते उन्हां दे बच्चों ने थां ले लेनी है। अच्छा, जिहड़ा सर्कल चलदा होवे उहनूं पानी दी नदी नाल तोलिया जा सकदा भी। गल सेम बिल्कुल साडे संसार वाली नदी वर्गी आ। इत्थे पुराने जा रहे ने ते नमें आ रहे ने। पुराने पत्ते उड़ गए, झड़ गए ते नमें आ गए ते की बन गया? नदी दा सीन बन गया। हुण पंजवें पातशाह कहंदे बहती जात कदे। बंदिया तू निगाह मार के नहीं वेखी? दृष्ट निगाह ना धारत, तू कदे निगाह मार के नहीं वेखी। असी पूछ लिया सच्चे पातशाह किहड़ी निगाह दी गल करदे हो तुसीं? पातशाह कहंदे मिथ्या मोह बंदा नित पारच। कहंदे तू तां ना दिनों दिन मिथ्या मोह, मिथ्या मिथियां हुईयां गल्लां, मथियास जिन्हों आपां कह दिंदे आ, मिथियां हुईयां गल्लां नूं तू पक्कियां कर बैठा। मिथ्या मोह बंदा नित पारच, तू तां रोज मिथे हुए कम्मां दे विच जकड़िया गया, पकड़िया गया। मिथ्या मोह बंदा नित पारच। हुण करना किसी तू ए मिथे हुए कम्मां दे नालों खिहड़ा छुड़वा के थोड़ा वक्त उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़ना सी। जिहड़ा सही काम सी ना वो करना सी। आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधरै, विरला बूझै कोई। गुरु साहब कहंदे आहर पूरी दुनिया ही करदी है। दुनिया छड्डो, कीड़ी भी आहर विच लगी हुई है। अपने घर विच ना निक्के निक्के जीव, कीड़ियां, चिड़ियां आदक आपां वेखदे आ, वो भी विचारे सुबह तो लेके शाम तक 2-4 घंटे 5 घंटे किसे आहार नाल कित्ते नाल जुड़े हुए ने। बंदे ने तो जुड़ना ही जुड़ना गा, पर गुरदेव पातशाह जी कहंदे ये आहार तो थोड़ा जा उपर उठ जा, इस आहार तो थोड़ा जा उपर उठ जा। उपर की उठना? तू किरत करदा करदा ना सुकिरत नाल जुड़ जा। किरत करदा करदा असली किरत नाल जुड़ जा। आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधरै। जिस आहर करके साडी जीव आत्मा दा उधार होना सी, वो आहर नाल जुड़ जा। वो आहर किहड़ा गा? 1-2 हिंट ले लो इतिहास दे विचों। गुरु नानक साहब पहली बार किनू मिलते ने? आपां नूं पता, सत्कारयोग साडी सिख कौम दी महान शख्सियत बाबा मरदाना जी नूं मिलते ने। ते मिले कित्थे ने? अपने पिंड ची। हुण पूरे पिंड दे विच ना तलवंडी दे विच नानक पातशाह नूं ना अपना सच्चा मित्र नहीं लभ्या। पटवारी दा पोता। दरअसल कहानी ये हुंदी आ भी जिहो जिहा साडा सरीरक तल ते परिवारक जिहो जे असीं हां ना, असीं साडा सुभाग आ। अच्छा, जे कोई छोटा कहे ना भी मेरा मित्र बन जा, तो असीं पसंद नहीं करना। नहीं भरावा, मैं उच्ची जात दा, मैं उच्चे परिवार दा, मैं अमीरां दा लड़का, मैं तेरे नाल जारी पाउंदा चंगा लगदा? नहीं नहीं, मैं नहीं तेरे नाल जारी पाउणीगी। ये दुनिया दा दस्तूर आ ना, ये दुनिया दा सुभाग आ। वो निक्किਆਂ नाल जारी नहीं पाउंदेगे। पर बाबे नानक दा सुभाग की है? नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यो क्या रीस। जिथे नीच संभालियन तिथे
लिखा नदर तेरी बख्शीश की गल कीती आ। पातशाह जी ने ना अपने पिंड दे विच पटवारी दा पुत्त होण करके अगे अफसरां दा पुत्त नहीं लभ्या कोई, मैनूं अफसरां दा पुत्त चाहीदा गा मेरे लेवल दा नहीं। ते जे उत्थे अपना मित्र लभ्या ना ते वो भाई मरदाने नूं लभ्या। ते मरदाना कौन आ? ये मरदाना ओ आ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਉਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੁੱਕੜ ਆਟੇ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਜਾਊਂ, ਜੋ ਬਚੂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸੋਫੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਹਲੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਹਲੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੰਗਤਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੰਗਤਾ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। जिस दिन चलो अपनी विचार सी आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उधर विरला बूझै कोई। हुण आहर ओ करना जेड़े आहर दे नाल साडा उधार हो जे, काम ओ करना जेड़े काम नाल असीं अपने बच्चे भी पाल लईए ते सानू सुकून भी मिले। कई बार आपां लिखिया पढ़दे ना काम ही पूजा है, ये ओ काम दी गल आ। बाणी दसदी आ ओ काम कर जेड़ा काम करन दे नाल तेरा परिवार भी खुश होवे, साडा परिवार भी खुश होवे ते असीं सुकून च भी होईए, सानू ओ काम करके शांति भी मिले भी जो मैं कीता चंगा कीता, इहदे च माड़ा नहीं कीता। हुण जो करदे आ असीं ओ करदे आ जेड़ा काम कर लिया, पर मगरों डर लगी जांदा, हौल पई जांदे आ, ब्लड वध रिहा गा, ब्लड घट रिहा गा, डर लग रिहा गा, कदे कोई किसी तरह दा गलत केस ना पै जावे, डर लगदा ना। ओ कैसा काम आ जिहदे विच काम करन तो बाद चिंता होवे। बाबा नानक कहंदा ओ काम कर जेड़ा काम करके तैनूं रब्बी निगाह दे विच भी कबूल हो जावे। हुण मरदाना काम कर रिहा किहड़ा? अपनी किरत कर रिहा गा। मरदाना जी अपनी किरत कर रहे ने। जो किरत कर रहे हैं ना ते सत्कारयोग बाबा नानक मरदाना जी दे कोल वागे। मरदाना जी दे कोल गए ना, भाई दानिया नाम तो जानते पिंड दा गा, की कर दांगा? कहंदा देख ला भरावा, हुण मरदाने दी बोली है ये, उस टाइम ते बाबा नहीं जां बाबा नानक नहीं, उस टाइम ते बोली की आ? कहंदा भरावा देख ला की करदा, वेख नजर मार ला, वेख ला। कहंदा नहीं भरावा मैं तैनूं पुछना चाहुंदा तू की करदा? कहंदा मैं रियाज करदा, मैं रबाब ते रियाज करदा। बाबे नानक दा अगला प्रश्न है, कहंदा क्यों? कहंदा इस करके मैं ये रियाज करके अपने वल्लों अभ्यास करके कल नूं लोकां दे घरां विच जाके रबाब वजावांगा। मेरी रबाब दी धुन सुन के लोग मैनूं कोई टका देवेगा, कोई आटा देवेगा, कोई कणक देवेगा, ते ओदे नाल मैं अपना परिवार पालदा। बाबा नानक बहुत खुश होया, कहंदा मैं तेरी इस किरत तो सदके जांदा हां। चेता रखियो बाबे नानक दा जिहड़ा सिद्धांत आ ना, 3 सनेहरी उपदेश ने, किरत करो, नाम जपो, वंड के छको, 3 उपदेश आ ना। हुण ओ 3 उपदेशां दे विच पहला पॉइंट की आ? किरत करो। इथों सिद्ध की हो गया? बाबा नानक काम नूं प्यार करदा गा। ते बाबे नानक दे उपासक, बाबे नानक दे नाम ते अपना घर चलाउण वाले, अपना डेरा चलाउण वाले, ओ नहीं किरत दी गल करदे ना। ओ ना तां कहंदे असीं करिए ते ना तुहानूं करन दे विच पहल देईए। हुण साडा सारिआं दा सुभाग है, विचों बिरलिआं नूं छड्ड दो, आपां किरती बंदे नूं पसंद नहीं करदे। किरती बंदे नाल साडी लिहाज नहीं हुंदी। उदाहरण मान लो मेरी बच्ची होवे ना ते मेरी बच्ची वास्ते कोई बर लेके आवे, भाई फलाने लड़के दा मैं तेरी बच्ची नूं रिश्ता करवाउणा, मैं सब तो पहलां पुछूं की करदा, ते ओह अगों जवाब देगा देखो जी वो अपना काम करदा, ओहदी दुकान आ। मैं नक मारूं ना यार, मैनूं तां पसंद नहीं। मैं कहूँ तो मिस्त्री हैगा, वो तो दिहाड़ी करदा गा, वो किसी तरह की मेहनत करदा, मैं पहलों पहल की कहूँ मैं नक मारूं ना 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 ना, मैं किरती नूं पसंद नहीं करूँगा।
सोचो ये साडे समाज का सुभाग आ, पर जिहड़ा बाबे नानक का सुभाव ना वो की वो किरती नूं पसंद करदा, किरत ते किरती नूं। हुण बाबे नानक ने मरदाने नूं पसंद कर लिया ते की कहागा, कहंदा दानिया मैं पुत भाई तैनूं एक गल दसनी चाहुंदा, वेख तू किरत करदा, तेरी किरत नूं सलाम है, पर तेरी किरत विचों जे करते दा दीनदार करवा देवां तैनूं मैं, फिर कहंदा सच्चे पातशाह फिर इदू चंगा की हो सकदा। कहंदा चल फिर उठ तू मेरे नाल चल, क्योंकि तू किरत करदा इस करके तेरा परिवार पालदा ना, तू किरत करेगा मेरे नाल रबाब बजाउण दी, तेरी किरत जारी रहू, ये तेरी किरत नहीं मैं छडवावांगा ना। तू अपनी किरत करी ते नाल तेरी किरत दा बनदा मुल, बनदी तनखाह, बनदी दिहाड़ी मैं देवांगा। कहण तो भाव किसी तेरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है, मैं तेरे परिवार नूं पालांगा। हुण मरदाना इत्थे दुविधा विच फस गया भी किवें कहां, मैं पटवारी दा पुੱਤ आ, वड्डे घर दा पुੱਤ आ ना, जवाब मैं दे नहीं सकदा। उम्र च मैं वड्डा, ये मैथों उम्र विच छोटा, गुरु नानक साहब नालों भाई मरदाना जी 12 साल वड्डे ने। हुण उम्र विच मैं वड्डांगा, किवें करिए, जवाब दईए कि ना दईए। कहंदा मैं अपने ना माँ प्यो नूं पुछिआ मां, किरत विचों करता देखण दे लई मैं अपने माँ प्यो नूं पुछां मां। ते पातशाह कहंदे चल जाया कोई गल नहीं। हुण जाके माता लखो ते भाई बदरा, ये मरदाना जी दी माता ते पिता दा नाम आ, जाके उन्हां नूं बेनती करदा, कहंदा माता जी पटवारियां दा पुੱਤ नानक आयागा, वो कहंदा मैं तैनूं तेरी किरत विचों ना रब दे दर्शन करवा दूंगा। तू ऐ कहंदागा पुੱਤ ਉਹਦੇ बदले करना की होगा, कहंदा करना मैं यही काम, रवा भी बजाउणी आ, मेरी किरत चों करते दे दर्शन करवाऊगा वो, ते कहंदा तेरे परिवार नूं मैं पालूंगा। ते माता ने अगों पता की कहा, कहंदी पुੱਤ देख ला वो पटवारियां दा पुੱਤ आगा, आपां शूदर आ, आपां नीवीं जात दे आ, लोकां दी रीत मुताबक, किते ना होवे कल नूं वो तेरा खैड़ा छड्ड जे, किते ना होवे कल नूं तेरा खैड़ा छड्ड जे। कहंदा मां मैं फिर पुछ के देख लूं ना उहनूं भी किते मेरी अज उंगल फड़ ले ते कल नूं उंगल छड्ड जावे, फिर मैं अध विचाले रुल जूंगा, ते जे मेरी अज उंगल फड़ेगा ने कल नूं उंगल छड्डनी नहीं होवेगी। हाँ पुੱਤ पुछ ली, पुछ के गल करी, एवीं ना नाल वग जी, किते ना आपां धुरदे ते ना आपां धामदे, धोबी दे कुत्ते वाला काम ना हो जावे, अध विचाले ना लटक जाएगी, असीं भुखे मर गए ते तूं भी अध विचाले फिरदा होवें। जिवें मां ने गल कही आ उवें जाके गुरु नानक साहब अगे ना बेनती करती। कहंदा भरा मेरिया, कहंदा मेरी मां दा आ जवाब आ। वो कहंदा की कहा, वो कहंदी भी किते नानक तेरी उंगल ना छड्ड ना देवे, असीं भी किते भटकदे रहीए ते किते तूं भी अध विचकार डुੱਬ जावें। नानक पातशाह हस के बोले। हुण इत्थे गल देखो, ध्यान दिओ, नानक कहंदा एक बारी उंगल फड़ा तां सही, इत्थे तां की तेरी उंगल ना आउण वालियां पीढ़ियां दे विच लोक वेखणगे भी मरदाने दी उंगल बाबे नानक दे हथ विच फड़ी हुई आ, ये उंगल रहिंदी दुनिया तक नहीं छड्डूंगा, मैं उंगल रहिंदी दुनिया तक नहीं छड्डूंगा। पर भागां वाले गौर आपां करनी है, क्योंकि आपां आरंभता दे विच बेनती कीती सी, बेशक आपां बाबा साधु सिंह जी दी अंतिम अरदास ते पहुंचे आ, पर जो विचार ने, जो गुरबाणी दा फरमान है, वो उपदेश अपने लिए आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ कुछ सिख के जाणागा। हुण सिखना की आ, असीं बाबे नानक नूं अपनी उंगल फड़ाई है जां नहीं फड़ाई, ये आपां गौर करनी आ, ये आपां अपने वल तक के वेखणागा। पर मरदाने दी फड़ी हुई बाबे नानक वल्लों उंगल अज भी वो दोने जने ना इकट्ठे बाणी विच बैठे ने। पातशाह ने जिथे पावन बाणी लिखी आ ना, उचारण कीती आ, ते उथे मरदाना जी दा नाम लिखिया। श्लोक महला पहला मरदाना, मरदाना भाव मरदा ना,
इनू हुण आप अलग कर लो, इउं कह लो नाम जोड़ कर लो, मरदा अलग कर लो प्लस ना, मरदा ना भाव बाबे नानक ने वो बख्शिश करती। मरदाने नू कहंदा तू रहिंदी दुनिया तक मरेगा नहीं, शरीर करके भावें चला गया पर रहिंदी दुनिया तक लोग तैनू याद करनगे, लोग तैथों रह लिया करनगे, लोग तेरी जीवनी पढ़ के ना अपने बच्चों नू सिक्ख्या दिया करनगे। ये तेरी सिद्धांतक तत्थां ते स्रोतां ते गल होया करूगी। फिर देखो ये वो पातशाह जी ने जिन्हां ने नानक पातशाह ने भाई मरदाना जी नू उन्हां दी किरत विचों करते दा दीदार करवाया। फिर चेता रखियो अगली एक मैं बेनती होर करांगा, फिर आपां शब्द वल चलांगे। बाबे नानक नू एक दिन ना मरदाना जी कहंदे ने, कहंदे मेरे लिए चलो, क्योंकि देखो एक भरा भरा दा रिश्ता हैगा उत्थे, लोग पुछदे ने कौन आ ये, ते बाबा नानक कहंदा मेरा भरा गा, ना चेला ना सेवक ना कोई होर रिश्तेदारी विचों ना, ये मेरा भरा गा। जिथे भरा भरा होण ते उथे उथे आपां नूं पता किसे तरह दी भी कोई इदां दी गल नहीं हुंदी भी बंदा एक दूजे नालों गुस्से विच आया ते मुड़ के बोले ना। आखिरकार जिद्दे कोई गल हुंदी आ भरा भरा दे हक विच खड़ जांदा गा। हुण मरदाना जी एक दिन नानक पातशाह नूं थोड़े जे रोस विच कहंदे ने, कहंदे पातशाह मेरे लिए तेरे कोले की है। उत्थे गुरु नानक साहब ने ना अपने हिरदे दे विचों बोल के ऐसे मरदानिया भरावा तू ये गल ना कह मेरे कोल तेरे लिए है की नहीं, कहंदा तेरे लिए सब कुछ ही है। तू मैनू किन्ना क प्यार करदा, हो सकदा मैं डूम दा पुत डूम ही रहा, मैं मरासियां दा पुत आ ना मरासू ही रवां, ते तेरे कोले मेरे लिए की है। ते फिर चेता रखियो बाबे नानक ने उत्थे किहड़ी गल कही है, कमाल दी गल कही आ। कहंदा मरदाने भरावा ये गल ना कह, गल तू कहना दुख मैनू हुंदा। किस गल दा? क्यों? क्योंकि तैनू मैं ना अपने रब नालों परमात्मा नालों पहला याद तैनू करदा। मैं किवें बाणी आउंदी है ना बाणी, ते जदों बाणी आउंदी है ना गुरु नानक साहब दे दिमाग सुरत विच, ते मरदाना जी नूं कहंदे ने मरदानिया छेड़ रवाब बाणी आई आ, बाणी बाद विच गाउणे आ, पहला मैं अपनी जुबान ते तेरा नां लैना। मैं इस जुबान दे नाल ना पिता कल्याण चंद दा, ना तृप्ता दा, ना अपने पुत्रां दा, ना अपनी पत्नी दा, ना मैं किसी होर दा, सब तो पहला ना रब नालों पहला भी ये जुबान ते तेरा ना आउंदा। फिर देखो किन्ना रिश्ता गूढ़ा बन गया। फिर मरदाने नूं पता लग गया भी मेरे लिए गुरु नानक दे हिरदे च बहुत बड़ा प्यार छुपिया होयागा, ते वो प्यार भी सच्चा है। दुनिया दे प्यार तां झूठे हुंदे ना, एक तरफी हुंदागा, पर बाबे नानक दा प्यार सच्चा प्यार है, जिन्हें किरत विचों करते दा दीदार करवाया। इस करके बाबा फरीद साहब जी जो कहंदे सी ना, फरीद साहब जी कहंदे फरीदा दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए, बाज आया वो बगले नूं झपट मार के चुक के ले गया। वेंदियां वेंदियां बगला खत्म हो गया। ये वेंदियां वेंदियां बगला किहड़ा गा? असीं दरिया किहड़ा गा? आ संसार। वेंदियां वेंदियां किन्ने साडे आसे पासे दोस्त मित्र रिश्तेदार सके संबंधी चले गए, किन्ने चले गए ना। फिर देखण वाली गल ये आ भी जेड़े चले गए ना वो बगला रूप सी, बगला रूप सी नहीं पता सी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ना किन्ने एक्सीडेंट होंदे ने, बंदा चाह दे विच शराबां पींदा, कबाब बड़ा कुछ करदा ना, किन्ना कुछ करदा। वो वाहिगुरू नालों टुट के बड़ा कुछ करदा। इत्थों तक माड़े काम करदा बंदा, अपने घरे मां नूं भी नहीं पता, प्यो नूं भी नहीं पता। आखिरकार हकीकत की आ, आपां सारे भैण भरा बैठे आ, अपनी पत्नी नूं भी नहीं पता। माड़े काम इन्ने करदा, पर माफ करना नतीजा आउटपुट राह दे विच बेलने वर्गा शरीर बन जाता। कहण तो भाव गुशमुश हो जाता, पता उदों चलदा भी उता हो गया। कारण की सी? आ सी। समझ गए ना। इस करके बंदा उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल टुट के, अकाल पुरख वाहिगुरू टुटना, अपने आप नालों टुटना, अपने आप नालों टुटना, अपने बच्चों नालों, अपने परिवार नालों, अपने माता पिता नालों टुटना, अपने मूल नालों टुट जाना। इस करके गुरु साहब जी कहंदे बंदिया तेरी निगाह दे विच किन्ने चले गए, उन्हां दे विच नंबर साडा भी है।
है, बस तू ये ना मन्नी भी जे ओ गया तो मैं नहीं जाना, एक दिन असीं भी जाना, जान तो पहला पहला कुछ करिए। वो लास्ट में फरीद साहब जी श्लोक दे विच दसणगे भी वो आपां की करना है। नाल आपां थोड़ा सुन भी लेता भी आहार सब करदा फिरै आहार एक ना होए, नानक जित आहार जग उधरै, बिरला बूझै कोए। ओ आहार किया गुरु दे बचन, कर्म धर्म पखंड जो दिसै तन जम जगाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावहो करते का, निमक सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरियै। जे कोई रब दे प्यारियां दे गुरु दे बोलां दा बचन अपनी जिंदगी च कमा लवे ना, सच जानो ओ तर जांदा। कौडा राक्ष राक्ष नहीं रहा, कौडा राक्ष भाई कौडा बन गया, सज्जन ठग ठग नहीं रहा, भाई सज्जन बन गया, सदना कसाई कसाई नहीं रहा, भगत सदना जी बन गए। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बैठा गा सी ओ जिन्हों लोग कसाई कहते हैं, पर बैठा कित्थे आ? गुरु ग्रंथ साहिब दे विच थां मिल गई। कदों मिल गई? जदों गुरु दे बचनां नूं कमा लिया। गणका पापण पापण नहीं रही, गणका एक रब्बी सत्कार ते प्यार वाली बन गई। अजामल पापी जग जाना है, अजामल पापी पापी नहीं रहा, अजामल एक वधिया इंसान बन गया। फिर गुरु साहब जी कहते आपां भी बन सकते हाँ जे आपां गुरु दे वचनां दे नाल जुड़ीए। फिर फरीद साहब जी कहते ने अचिंते बाज पे तिस रब दे केलां बिसरियां। जदों हुण मौत अपने बूहे ते दस्तक दिंदी आ ना, दरवाजे ते आउंदी आ, सानू नज़र आउंदी आ भी है मैं मरन वाला, मैं बीमार हो गया, लक्षण बन गए, ते उदों बंदा भजदा गा। जदों बंदा भजदा ते उदों भजण दी समर्था खत्म हुंदी आ। नैनो नीर वह तन खीना, भय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करहे प्राणी। हुण गुरु साहब जी कहंदे लत्तां रुक गईयां, हथ काम करनों हट गए, गले चों आवाज़ आउणों हट गई, अखां तो दिसणों हट गया, हुण की करेगा? मतलब अंदरों आप देसी भाषा वरतो लूरियां उठदियां भी मैं आ काम करा। पर बाबा भीखण जी कहंदे ना, कहंदे प्यार वालिया हुण नैनो नीर बह तन खीना, हुण अखां विचों पानी डिगदा, किसे नूं सियाणिया भी नहीं जांदा, इदां हथ ला ला वेखदा भी कौन आ इह, नाल दा खड़ा दसदा तेरी धी आ, पछाण नहीं आउंदी, अखां चों त्रिप त्रिप पानी डिगदा गा। ते हुण अखां दे नाल गुरु दे बचनां नूं पढ़ना गा, ते अखां नाल पढ़ के जीव नाल बोल के कन्ना नाल सुनना, ये स्रोत काम करनों हट गए, अखां तो दिसनों हट गया, जीव ततलाउण लग गई, कन्न सुननों हट गए, हथ पैर रुक गए। नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै। फिर भगत भीखण जी कहंदे ना अब तो भाव हुण अब क्या करें प्राणी, हुण तां भाई मौका लंघ गया, हुण नहीं मौका है। जिवें बच्चे की कुछ उम्र आ ना, तो उम्र के दायरे में रहिंदा होया कुछ सीख सकदा, कुछ पढ़ सकदा, कुछ कर सकदा। उम्र लंघ जावे ते आपां ही कहने आ भाई हुण तेरी ये काम करन दी उम्र लंघ गई। हुण गुरु साहब उत्थे कहंदे ने ये चिंगियाई वाले पासे तुरन वाला वक्त सी, काली जिन्नी ना रावे धौलै रावै कोई। फरीद साहब जी कहंदे ये काली विच, काली तो भाव जवानी विच कोई कोई आ जिहड़ा सच दे मार्ग वाले पासे तुर पैंदा। फिर आखिरकार कोई विरला हुंदा जिहड़ा बुढ़ा होण दे शरीर दे बावजूद भी वो नौजवानां वाला अपना जीवन ढाल लैंदा। धन गुरु अमरदास महाराज वर्गी कोई महान शख्सियत उभर के अगे आउंदी आ। बाज पे तिस रब दे केलां बिसरियां, फिर जो मन चित ना चेते सन। फिर असीं की कहने आ सो गाली रब कीयां। अगले श्लोक में जिक्र करदे फरीद साहब जी, साढ़े त्रों मन दोहरी चलै पानी अन, साढ़े त्रै मन, साढ़े तीन मन का एक अंदाजा आइडिया लाया शरीर का। वैसे साढ़े तीन मन वाला शरीर साडा खत्म हो गया हुण तो छोटे छोटे शरीर रह गए, कद भी छोटे छोटे, शरीर भी साडे छोटे छोटे, साडा खाना पीना इहो जिहा हो गया।
ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰਬ ਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਲੋਹੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਜਮ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਿੱਜ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਯੋਧਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦੇਹੋਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਮਚਾਉਨੇ ਆ? ਅੰਨ ਪਾਣੀ। ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦੇਹੋਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਦੀ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ, ਕੀ ਪੜਿਆ? ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ। ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤ ਅਸੂਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਮੌਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਰਮੌਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਗ ਦੇ ਵਕਤ, ਭੋਗ ਦੇ ਵਕਤ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਡਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੈ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਸੁਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੱਜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣੀ ਆ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਲੜਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਜੋ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਥਾਂ, ਜੋ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਵਿਧ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾਗਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੜਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਅਮੰਡਲ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੋ ਰੇਣ ਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮਹਿਲ ਮਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤਰਬਕਦਾ, ਡਰਦਾ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਚਾਅ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ, ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਮਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰਾ ਬਾਰ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ताइयों गुरु साहब ने लिखा गा, आयो बंदा दुनी विच बत असूनी बन, मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन। फिर साडे भरावां ने की कीता, तिन्ना प्यारियां भाइयां अग्गे दिता बन, भाव प्यारे प्यारे भरावां ने सीढ़ी ते लंबा पा के बन के ओ मौत दे फरिश्ते अगे ला दिता, लै जाओ। किसी दी वाह नहीं चली, हिम्मत नहीं हुई, किसी दी कोई ताकत नहीं है भी रोक लवे, बचा लवे, अपने घर विच रख लवे। तिन्ना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन। फिर पातशाह जी कहंदे ने, कहंदे आ साडे जीवन दी यात्रा, पर होया कि सफल नहीं हुई। होना की सी, सफल होना सी। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, आ कम हो गया। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। गल सी ये जन्म नूं लेखे विच पाउण दी, पर होया की आ, खाण विच पीण विच हंडाउण विच ते हसण दे विच आपां फस गए। ये गल ध्यान रखियो, गुरु की पावन बाणी विच ये नहीं लिखिया भी तू खा ना खाना है, पी ना पीना है, हंडा ना हंडाउणा है, हसना हसना है। पर हसना केड़ा? सुथरे शाह वाला, मस्से रंगड़ वाला हासा नहीं, सुथरे शाह वाली हासी होनी चाहिए। अपने जीवन को खुश रखना ये भी एक बहुत बड़ा गुण आ। अपने आप को खुश रखना, खुश रहना, पर वो गुरु आसे अनुसार होवे। इत्थे मच्छे रंगड़ वाला हासा नहीं चाहिदा। फिर गुरु साहब ने की कहा, साडे जीवन का मनोरथ की बन गया? हसना पीना खाना सौना, ये साडे जीवन का मनोरथ बन गया। विसर गया है मरना, खसम बसार खुआरी कीनी। खुआरी किस गल चा? जो अपने खसम नूं विसार दिता, अपने मालक नूं विसार दिता है। खसम बसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। चलो पातशाह फरीद साहब जी कहंदे ना, मलकल मौत जा आपसी सब दरवाजे भन, तिन्ना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन। देखो बंदा चलिया चौ जणियां दे कन, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच तां दरगह आए कम। लास्ट वाले दूजे 100 नंबर श्लोक दे विच बाबा फरीद साहब जी कहंदे ना, अमल जे कीते दुनी विच, जिथे आपां पिछे गल कीती सी आहर सब करदा फिरे, उत्थे गल फिर आ गई। आहर सब करदा फिर आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधरे विरला बूझिया कोई। इत्थे लिखिया फरीदा अमल जे कीते दुनी विच, दुनी दुनिया, दुनिया दे विच चंगे काम कीते ने। ते अगे जिक्र की कीता, दरगह आए कम। हुण वो केड़ी दरगाह गई जिथे बंदे दे दुनिया विच कीते हुए कम कम आउण। शायद सानू दुनिया दे विचों माफ करना, मेरा दावा एक भी पूरे वर्ल्ड दे विचों सानू वो दरगाह नहीं थे होनी। जिहड़ी दरगाह दा पुजारी लोग सानू ठगण वाले, लुटण वाले, लुटेरे लोग गल करते हैं ना, वो दरगाह ते एक गुरु वालों दसी हुई दरगाह। जिहड़ी गुरु वालों दसी आ वो तो सानू इत्थे आजू, ते जिहड़ी किसी बंदे वालों दसी भी है ना, वो नहीं इत्थे आउणगी। क्योंकि बंदा होशेपन च बोलदा ना, बंदा इमोशनल हो जाता, बंदा तुरंत फैसला लैंदा, जी हाँ मैं इउं कर दूं, मेरा ये दावा गा। कोई लीडर फीडर आ उहनूं भी भाव इदां दा हो जाता भी नहीं जी मेरा दावा गा। कोई संत महापुरख, माफ करना पहली गल तां हन विरले विरले रब दे प्यारे, कोट मध्य को बिरला सेवक है ना। करोड़ां दे विच कोई एक अद्धा संत रब दा प्यारा धर्मात्मा जीव हुंदा गा, पर हर एक नहीं गा। हर एक नूं तां कबीर साहब ने लिखिया की कहंदे ने, गली जिन्ना जप मालियां लोटै हथ निवग, ओए हर के संत ना किए। ये कौन ने? बनारस के ठग। देखो असी संत कहने बाबा कबीर साहब ठग ने भाई, वो ठग की कहंदे ने, कहंदे नरक भी है स्वर्ग भी है। वो स्वर्ग नूं दरगाह मानते ने, पर रब दे प्यारिਆਂ ने, कबीर साहब वर्गा ने रद्द करता। क्या नरक क्या स्वर्ग विचारा? की नरक की स्वर्ग? नरकां तो सानू डर नहीं लगता। कौन कहंदा? रब दा प्यारा। क्यों आपां गल पहलां कर ली, रब दा प्यारा डरदा नहीं, किसी चीज़ तो भी डरदा गा। नरकां तो डर कोई नहीं, स्वर्गां दी चाहत कोई नहीं।
नरकां तो खतरा कोई नहीं, स्वर्गां दी चाहत कोई नहीं। कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो राधे असीं दोनी रद्द करते। ते हुण पुजारी बिटर बिटर झाकदा, कहंदा हुण मैं की गल करां। हुण ओह कहंदा ए भाई सानू पुन्न दान करेगा, ऐ करेगा, बहु करेगा, जो करेगा, तैनूं अगली दरगाह दे विच काम आऊ। ओह कित्थे दरगाह गी? फिर कबीर साहब लिखिआ ना, ये जिहड़े दावा करदे आ ना अपणीਆਂ ਧੀਆਂ बहू बेटियां धन दौलत जमीन जायदाद साडे नाल लवा दो, ते आप ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਥੜੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। मरण तो बाद जीव कित्थे गया कोई पता नहीं, कित्थे जाना कोई पता नहीं। ये तो बाबे नानक ने दोवें हाथ खड़े करके गल कही आ, कौन मूआ रे कौन मूआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ब्रह्म ज्ञानी कौन आ? गुरु ग्रंथ साहिब। ब्रह्म दा ज्ञान, पूरा ज्ञान, पूरे वर्ल्ड दा ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब दे विच छुपिया होया। पताल बारे, आकाश बारे, दुनिया बारे जो मर्जी पूछो, ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत भया अगली किश खबर ना पाई। रोवण हारे पी ऊठ सदाई। बाबा नानक दा एक दावा है, अगली गल दा पता किसे नूं नहीं, पर एक गल जरूर आ, जिथे ये जीव जा रहा उत्थे असीं जाना। ਇਹ नहीं पता वो कित्थे गया, जिथे वो गया उत्थे असीं जाना, जिथों असीं आए हाँ उत्थे जाणागा। बस ये जाण वाली गल दा उत्तर लभण दे लई आपां नूं की वेखना पवेगा? एक गल वेखणी पवेगी, वो किहड़ी आ? असीं आए कित्थों हाँ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ।